Yes. What? Remove 0, 1, 2. Okay. 0, 1, 2. Okay. Only 3. 0, 1, 2 and 13, 14, 15. Yes. 0, 1, 2 and 13, 14, 15. Why 0, 1, 2? Because 0, 1, 2 में जनरेट ही नहीं हो रहा. Because we are adding directly 3. 0 plus 3. So 3 से start होगा. So 0, 1, 2 are remaining. Same for if you consider the last digit, so it is a 9. If I adding this 3. So 9 plus 3 कितना होगा 12. So again 13, 14, 15 are remaining. So access 3 में illegal codes कितने हैं 0, 1, 2 and 13, 14 and 15. These are the illegal codes. And what is the use of this illegal codes? Normally it is used in addition. Okay, if illegal codes are generated, then in BCD में क्या करना है 6 ऐड करना है and access 3 addition में क्या करना है 3 ऐड करना है. Okay, subtraction is a different thing. So आपको subtract करना है 6 and access 3 में क्या करना है if both are present then you have to subtract the 3. Okay, so in this way हमने एडिशन किया था जितने भी है उसका BCD एडिशन. ओके, इट इज 8 for okay BCD एडिशन, subtraction, access 3 addition, access 3 subtraction and last binary code किया था gray code. It is also called gray code. It is also called as a reflected code. Okay, many times asked in GTU for conversion, like you to convert from to means binary to gray or gray to binary. Okay, first of all if you have to convert gray to binary, so कैसे convert करना है आपको, binary to gray. First digit as it is रहेगा, after that you have to take the XOR in horizontal direction. Means 1 and 0 का आपको XOR करना है, so it is a 1. 0 0 का XOR क्या होगा 0 and 0 1 का XOR क्या होगा 1. Same for reverse, but in a cross way, like convert gray to binary. Means first one as it is, after that you have to take the XOR in a cross direction, 1 and 1 in this way, and 1 and 1 का XOR क्या होगा 0, again 0 0 का 0 and 0 1 का 1. Okay, so these are the conversion which is a very important. Next one is the error detecting code. As I already explained, if we transmit any data, okay, and especially if it is data is digital, so consist of 1 and 0. Okay, if you are transmitting your any number or word, okay, and if noise is present in your channel, so at the receiver side some error is always there. आपको जो number है वो perfectly नहीं मिलेगा. ठीक है, स्पेशली डिजिटल में if one bit भी अगर change हो जाता है like 1 to 0 or 0 to 1, so it generate the serious problem. So for the single bit error should be detect and correct by different scheme. These are the scheme to detect the error, not like correct. Correct के लिए different आएगा. Parity, checksum and block parity are the example of only detecting code. आपको अगर error detecting code बोले then you have to explain all this. Parity, checksum and block parity. Now what are the scheme in detail, like parity. So parity bit, it is the simplest technique. Means two types of parity are present, odd parity and even parity. Now what is odd parity? So at the transmitter side we have to send message with parity bit. We have to add one extra bit. It is called as a parity bit in your message. Means we have to transmit message plus parity. Okay, now what is the meaning of odd parity? Okay, so for odd parity, parity is set to 0 or 1 at the transmitter such that a total numbers of 1 present in your word including parity bit is odd number. Means message उसके साथ आपने क्या एक bit extra add किया parity bit. Now you have to check total numbers of 1. If total numbers of 1 are odd like 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 in this way, so you can consider the message it is with odd parity number. Okay, and at the receiver side if for any one digit change, so it becomes the even parity. So receiver knows कि some error was there, so it apply for the retransmission. Okay, but again question mark.
मैंने सेंड किया था एक कोड नंबर जिसमें मेरे नंबर्स ऑफ 1 कितने प्रेजेंट थे, 3। आफ्टर ट्रांसमिशन एट द रिसीवर साइड अगर 2 डिजिट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सो माय नंबर्स ऑफ 1 बिकम्स 1, लाइक इट इज लाइक एग्जांपल कि 3 थे, 2 डिजिट चेंज हुए एंड नंबर्स ऑफ 1 बाय चांस 1 मिल गए, फिर भी ऑड पेरिटी ही है बट मिस्टेक है, so it is a disadvantage. So this odd parity, it is only used to detect only 1 bit of error. Okay, 2 बिट्स में तो वो चेक नहीं कर सकता बिकॉज 5 मैंने सेंड किए थे, वहां पे मुझे 3 1 मिल रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ ऑड पेरिटी। सो रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि पेरिटी चेंज हुई क्योंकि वहां पे ऑड ही मिलेगी पेरिटी। Okay, so it is used only 1 bit of error. Okay, now what is even parity? Same. If total numbers of 1 present in your message with parity bit, if total numbers of 1 are even like 2, 4, 6, 8, 10, then we can say your message having the even parity number. For example, आपको एक नंबर दिया है जो मुझे सेंड करना है 0110. Okay, if I add, it is a simply message. Parity bit अभी मैंने उसमें ऐड नहीं किया। Okay, if I add extra 1 parity bit here, so क्या होगा? Total numbers of 1 3, so it becomes odd parity. Okay, so this number having has 1 as odd parity. अगर 1 आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो नंबर की पेरिटी क्या हो जाएगी? odd. And if I place 0, so total numbers of 1 like 2 means it is even, so it becomes even parity. So you can design any message with odd parity as well as even parity by adding 1 and 0. Like ये मैंने मोरिस मेनू का एक स्नैपशॉट लिया हुआ है, उसमें एक पूरा टेबल दिया है, ठीक है। ये तो आपको पता है आपको कैसे लिखना है, 16 डिजिट by using 4 bits combination, 2:4 means 16 combination. Okay. Okay. First, if I design odd parity message with parity bit, okay, and same for even parity message. So at the starting of your message, how many numbers of 1? Message में तो 0 है, so we have to add 1 in parity bit. So now message plus parity bit, कितने numbers of 1 present हो गए? 1, so it becomes odd parity. By chance अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, so वो even parity हो जाए. Same for message में already 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करती हूँ, so it becomes even parity, means total numbers of 1 क्या हो जाएंगे? 2. So for that I have to place simply 0. Same for अगर मैं 2 का कंसीडर करूँ, so 2 means even parity, so parity bit मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 1. then total numbers of 1 message plus parity bits कितने होंगे? 3, so it becomes odd parity. So you can design odd parity in this way. Same for even parity. Okay, even parity में क्या होगा? 0 0 0 0, तो of course I have put 0. If I put 1, then it becomes odd parity. Same for if 1 is present, then I have to put 1. Then total numbers of 1 becomes 2 and it becomes even parity. So this is the fundamental of parity bit. It is only used to detect a 1 bit of error. Next one I already explained. Okay, checksum. Okay, simple parity can not detect a 2 error within same word. Added to sum of previously transmitted word at the transmission checksum up to the time is sent to the receiver. The receiver can check its sum with the transmitted sum. अब क्या करना है? Like parity only detect 1 bit of error. So another scheme is there. You have to add all the bits and find the sum of that bits. Okay, and transmitted sum and receive sum. If both are same, then we can say there is no error in your word. ओके, सम आपको कंपेयर करना है, ट्रांसमिटेड सम आपको यहाँ से सेंड करना है, सेम वहाँ पे चेक करना है कि सम है वो मैच हो रहा है, then your number is perfect. Otherwise receiving location can ask for retransmission of entire data, and this type of transmission it is used in teleprocessing system. Okay, so this particular scheme use the total numbers of addition of total numbers of bits means sum. Okay, next one is a block parity. It is a like modified version of parity, you can say. It considers the parity row as well as parity column, but it provides me the block, not like a single message, but it send a numbers of message. Like कितने message है उसमें? 1 2 3 4 5 6. That's why it is called as a block. Means मुझे message का पूरा block है वो send करना है by using parity bits. Okay, अब यहाँ पे देखो, like message plus parity bit, you have to check column parity
as well as row parity for every row as well as for every column. So what is the need of this block parity? Okay, if आपकी जो रो है, ठीक है, उसमें कोई भी डिटेक्ट अगर चेंज हो जाता है, बट अगर कॉलम है उसमें वो चेंज नहीं होता, मीन्स कॉलम कंसिडरिंग द like odd parity and your row gives the even parity. So because of this classes receiver knows कि some error was there, but ऐसा भी हो सकता है कि रो की parity भी चेंज हो जाए as well as कॉलम की भी हो जाए. So it is a limitation. Like first यहाँ पे अगर मैं काउंट करती हूँ message plus parity. So how many numbers of 1, 4 and 5? So I just say it is a odd parity. Same for I check the first column also. So कितने numbers of 1 present है? 3. So I can say it is a odd parity. So for every row and every column I have to check the parity. Row parity as well as column parity. Okay. If all are same then we can say this particular block it is a perfect. Okay, but any one bit violate then it's become change. Like अगर मैंने इस particular bit को change कर दिया, ठीक है, तो 1 का 0 हो चुका है, means now total numbers of 1 कितने present है? Even means 4. So this odd parity becomes the even parity, means there is a mistake. Same for अगर मैं उस particular bit की column भी find करती हूँ, उसमें भी mistake है, because it becomes 2 numbers of 1 in this column, means it again becomes the even parity. Okay, so receiver knows that के even parity as well as उसकी जो row है वो दोनों change हो चुके हैं, means there is some error in particular block parity. Even अगर row change हो जाती है, column change नहीं होती है, फिर भी receiver को detect हो जाएगा, ठीक है. लेकिन as I explain अगर 2 bit भी अगर change होते हैं, like जैसे यहीं पे है, ठीक है, 2 digit change हो चुके हैं, पहले 5 ones थे, कितने हैं यहाँ पे? 5 ones. Now it becomes 3. बट फिर भी इट इज स्टिल ओड पेरिटी. सेम फॉर हियर, उसके डिजिट देखो एट कॉलम वाइज 1, 2 and 3, कितने नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट है सेकंड कॉलम में? 3. सो इट इज अगेन ओड पेरिटी. सेम फॉर 1, 2, 3, सो इट इज अगेन ओड पेरिटी. ठीक है, सो स्टिल 2 एरर अगर आपको डिटेक्ट करनी है, सो ब्लॉक पेरिटी गिव्स लाइक हायर रिजल्ट कंपेयर टू पेरिटी, बट एट सम लेवल. आफ्टर दैट इट ऑल्सो गिव सम एरर, क्योंकि अगर 3 का 5 हो जाता है, ठीक है, सो पूरा ब्लॉक है उसको क्या करना पड़ेगा? वापस ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमीटर को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है. सो टू रिमूव और ओवरकम दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कीम पेरिटी, checksum as well as block parity. Okay, next one, it is a very used to overcome all this disadvantage. It is a Hamming code and it is called as the error correcting code mostly because it correct the error also, detect as well as correct the error. So this code use the multiple parity bits, now not a single parity bit. Okay, this particular code having the multiple parity bit and we have to place this parity bits in a position of power 2. Okay, parity bits को आपको कहाँ पे place करना है? In position of power 2. Okay, power 2 को क्या बोलते हैं? 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6. These are the powers of 2. Okay, so यहाँ पे आपको एक पैटर्न डिजाइन करके दी है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन पैटर्न है कि P1, P2, D3, P4, D5, D6 एंड D7. जो भी D से वो आपके डेटा बिट्स है एंड P1, P2, P4 वो आपकी क्या है? पैरिटी बिट्स है, ठीक है. पोजीशन ऑफ पावर 2 पे करना है, तो पावर 2 क्या होता है? 2 raised to 0 means 1, 2 raised to 1 means 2 and 2 raised to 2 means 4. That's why we are using P1, P2, P4 at particular location. Okay, now ये ग्रुप है, आपको 7 बिट हैमिंग कोड दिया है, तो उसके लिए जो ग्रुपिंग्स है ना वो डिसाइडेड है कि ग्रुपिंग आपको कैसे करना है. So it is a P1, D3, D5, D7, P2, D3, D6, D7 and P4, D5, D6 and D7. Now data is given, आपको एक डेटा दे दिया है 1101. Parity bit unknown है, we have to find this parity bits to transmit. Okay, यहाँ पे P1, P2, 1, P4, 101. तो ये 1101 कहाँ से आया? आपको डेटा ऑलरेडी दिया है, तो 1101. नाउ ग्रुपिंग करना है जो यहाँ पे मेंशन किया है. सो ग्रुपिंग करके आपको फाइंड आउट करना है कौन से ग्रुप में मिस्टेक आ सकती है, ठीक है. सो यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे किया? P1, D3, D5, D7. यू कैन कंसिडर इट इज लाइक अ वन ब्लॉक, जो हमने ब्लॉक पैरिटी कंसिडर की है.
ओके, नाउ मैंने यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे 1 प्लेस नहीं किया, ओनली सिर्फ मैं क्या प्लेस करी D3 D5 D7. सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1? 3. सो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? 1. देन एंड देन इट बिकम्स इवन पेरिटी. एंड व्हाट इज द नीड टू डू दिस इवन पेरिटी? बिकॉज आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है ऑफ इवन पेरिटी. सो अगर 3 1s यहाँ पे प्रेजेंट है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 1 ही ऐड करना पड़ेगा. तो P1 क्या बनेगा आपका? 1. नाउ P2. सो डेटा क्या है आपके पास? 1 0 एंड 1. ये कहाँ से लिखना है 1 0 1? ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. ये क्या है आपका? D3. ये क्या है? D6, सॉरी D5. ये D6 है एंड ये D7 इज लाइक अ पैटर्न. ठीक है, सो इट इज a 1 0 1. सो इट इज इफ यू कंसीडर टोटल नंबर्स ऑफ 1 तो कितने हुए? 2 मींस इवन. सो आई जस्ट पुट अ 0. सेम फॉर नेक्स्ट 2 नंबर्स ऑफ 1 तो आई जस्ट पुट अ 0. तो आपको पैरिटी की वैल्यू अब मिल चुकी है. P1 क्या है आपका? 1. P2 0 एंड P4 0. सो नाउ वी हैव टू ट्रांसमिट दिस हेमिंग कोड. ओके, आपको क्या ट्रांसमिट करना है? हेमिंग कोड. एट द रिसीवर साइड अगेन वी हैव टू चेक दिस टाइप ऑफ blocks. If error generated in particular block, then we have to check the position of this particular bit. Okay, now how to detect error and how we can correct this error. Okay, so आपको एक example दिया है कि your receive data word it is a 1001 हमने जो आगे यूज किया है वो भी आप यूज कर सकते हैं टू रिसीव डेटा के लिए. ठीक है, कि ये मैंने रिसीव किया है, वापस उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, जो ऑलरेडी मैंने सेंड किया था. इस तरह से भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक रिसीव डेटा डिफरेंट लिया है. सो इट इज 1001 ओके, उसको पैटर्न में हम प्लेस करते थे. कौन कौन से ब्लॉक्स थे मेरे? ग्रुपिंग, वो ग्रुपिंग यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, एज पर ग्रुपिंग. ठीक है, D3 D5 D7 एंड P1. सो सारे बिट्स मैंने लिख दिए क्योंकि ऑलरेडी सारे बिट्स मुझे दिए हैं इन रिसीव वर्ड में. ठीक है, सेम फॉर यहाँ पे लिख दिया, सेम फॉर यहाँ पे. ओके, नाउ पेरिटी मुझे कौन सी बोली थी? इवन पेरिटी. सो नाउ काउंट द टोटल नंबर्स ऑफ 1. कितने 1 से? 2. सो वी जस्ट राइट देयर इज नो एरर. कोई भी एरर नहीं है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में. नाउ 2 3 6 7. सो इट इज 0 0 0 1. सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1? ओनली 1. मीन्स इट कंसिडर इन अ odd parity. That's why it produced the error. So यहाँ पे क्या जनरेट होगी? Error. Now D4, D5, D6 and D7. So it is a 1 0 0 1. How many numbers of 1? 2 means even parity. So no error. So we have to just write the error word. Error word कैसे लिखेंगे? If no error, 3 bit का ही error word बनेगा आपका क्योंकि 3 मैंने blocks लिए हैं. So no error. So I just put 0. Now error. So I just put 1. And no error, then again I just put 0. अगर error generate हो रही है, second block में generate हुई, that's why I write here 1. अब इसका डेसिमल करो. क्या होगा इसका डेसिमल? बाइनरी नंबर दिया है, इसका डेसिमल कैसे होता है? बाइनरी टू डेसिमल. ओके, चलो बताओ. हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल? वो टेबल से मैम. सॉरी, जो टेबल था ना, हाँ, A2 का है 0 1 0. नो टेबल नोट. मैं आपको कन्वर्जन पूछ रही हूँ. बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे करते हैं? आपको अगर एग्जाम में पूछेंगे एक नंबर कि 0 1 0 1 0 1 0 1 ना कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर, सो हाउ यू कैन कन्वर्ट? मैम 2 is to 0 करना है और उसमें प्लस करना है. 1 की पोजीशन 1 है इधर, 0 1 में 1, तो उसको सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए 2 raised to 1 करना है, वो 2 आएगा. एक्चुअली आपको क्या करना है? यस, एक्चुअली आपको क्या करना है इसमें कि ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ बाइनरी मल्टीप्लाई विथ इट्स वेट्स. ओके, सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? 0. सो 0 into 2 raised to 0 plus 1 into 2 raised to 1 plus 0 into 2 raised to 2. तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा? 1 into 2 raised to 1, बिकॉज बाकी के जो डिजिट है वो क्या है? 0 है. तो 2 raised to 1 मीन्स क्या होगा? 2. सो 10 इट इज नथिंग बट बेस ऑफ दिस नंबर, डेसिमल नंबर. ओके, सो मुझे क्या करना? मुझे पता चल गया कौन से बीट में एरर है. सेकंड नंबर का बीट. मैम यस मैम, इसमें जो ब्लॉक्स क्रिएट किए वो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं? नहीं, ये ब्लॉक्स है ना 7 बीट हेमिंग कोड के लिए फिक्स दिए गए हैं.
यानी कि उसके 3 ही ब्लॉक बनेंगे ऐसे? या 3 ही ब्लॉक बनेंगे उसके। ओके। और ये फिक्स इसीलिए है कि आपको स्टार्टिंग से बोल दिया है कि आपको पेरिटी कहाँ पे प्लेस करनी है, पेरिटी इन पावर ऑफ 2। मतलब ये पैटर्न भी फिक्स है, 7 बीट हेमिंग कोड के लिए पैटर्न भी फिक्स ही रहेगी, बिकॉज 2⁻0 मीन्स 1, 2⁻2 मीन्स 1 मीन्स 2 एंड 2⁻4 2 मीन्स 4। तो मुझे सिर्फ पावर ऑफ 2 में ही पेरिटी बिट को प्लेस करना है। आप 3, 5, 6, 7 पे प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ पावर ऑफ 2। दैट्स वाई उसके जो ब्लॉक्स है ना वो भी फिक्स है। ओके, नाउ आपको ऐसा पता चल गया है कौन से बीट में एरर आई, सेकंड। बट यू टू कंसीडर द सेकंड बीट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअल में क्या है, 1 and 0। तो सेकंड बीट कौन सा होगा, ये 0 नंबर का। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यू टू कंसीडर द सेकंड बीट, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या दिया है 2, मतलब सेकंड बीट में एरर है। ठीक है, मतलब कौन से बीट में एरर है, P2 में। ओके, सो 0 का क्या कर देना है आपको, 1। आपको जैसे ही पता चल जाता है कि सेकंड बीट में एरर है, ओके, सो उस पर्टिकुलर बीट को आपको चेंज कर देना। 0 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म द एरर डिटेक्शन कोड। ओके, ये अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछते हैं एरर डिटेक्शन कोड, देन यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द स्कीम, डिपेंड अपॉन मार्क्स। अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा है देन यू टू एक्सप्लेन द स्कीम, अदरवाइज स्कीम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस हेमिंग कोड। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में पूछा है, तो 7 मार्क्स में पूछा है देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस स्कीम, पेरिटी है, चेकसम है, ब्लॉक पेरिटी, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। I think we have already studied some portion in this topic, ICs, logic families, in last chapter of your basic electronics. So important characteristic of digital IC, and this IC it is nothing but consist of numbers of gate. Okay, different gate के लिए different IC available है। आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें ही दिया हुआ है, IC है तो उसमें 4 NAND गेट है, बट वी कैन यूज ओनली 1 NAND गेट। ओके, so important characteristic of IC, actually when you are purchasing any IC, so you to like find this specification, आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन चेक करने पड़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, आई जस्ट राइट हियर। फर्स्ट, इट इज अ फैन आउट, सेकंड इट इज अ पावर डिसिपेशन, थर्ड इट इज अ प्रोपोगेशन डिले, फोर्थ इट इज अ नॉइज मार्जिन, फिफ्थ इट इज अ फैन इन, एंड सिक्स्थ इट इज अ ऑपरेटिंग टेम्परेचर। These definition are very important, many time asked in GTU। ये आपको 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, सो डिफाइन द फॉलोइंग करके आपको इसमें से कोई भी 4 डेफिनेशन पूछ सकते हैं फॉर 4 मार्क्स के लिए और फॉर 3 मार्क्स के लिए। सो फर्स्ट इट इज अ फैन आउट। ओके, फैन आउट इट इज नथिंग बट numbers of loads, you can say, like, or numbers of devices connected at the output of the gate. Okay, numbers of load or devices connected with the output of your gate, okay, and can drive without affecting the normal operation. Okay, so fan out specify the numbers of standard load that the output of gate can drive without impairment of its normal operation. Means gate के साथ मैंने numbers of device connect किए हैं, सो इट्स ओके, लाइक मैंने 3 डिवाइस कनेक्ट किए, सो मेरा फैन आउट क्या होगा 3, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपका जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स योर गेट कैन ड्राइव दिस ऑल लोड्स इजीली। नाउ सेकंड, इट इज अ पावर डिसिपेशन, इट इज अ मेजर ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय गेट व्हेन फुल्ली ड्राइवन बाय ऑल इट्स इनपुट। मीन्स आपका जो गेट है वो फुल्ली ऑपरेटेड मोड में है, सो कितना पावर कंज्यूम करता है, इट इज कॉल्ड एज ए पावर डिसिपेशन। Propagation delay, so it is very easy, means time required or delay required to propagate your signal from input to output। कोई भी एक गेट है, इनपुट मैंने दिया, आउटपुट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, इट इज कॉल्ड एज ए propagation delay, और यू कैन से propagation delay it is the average transition delay time for signal to propagate from input to output when signal change in value. It is expressed in nanosecond. Okay, now noise margin, so it is the maximum noise voltage added to input signal of digital circuit that does not cause a undesirable change in the circuit output। मीनिंग क्या है उसका कि आपकी जो सर्किट है उसको मैक्सिमम कितनी
नॉइज से वो टॉलरेट कर सकती है, एनी गेट और डिजिटल सर्किट कितना मैक्सिमम वोल्टेज है वो टॉलरेट कर सकती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ए नॉइज मार्जिन. फैन इन, सो इट इज अ टोटल नंबर्स ऑफ इनपुट कनेक्टेड विथ योर गेट. लाइक आपका नैंड गेट है, सो हम कितने उसमें इनपुट दे रहे हैं, इन जनरल 2, सो आई कैन से फैन इन कितना होगा 2. अगर आपने नोट गेट लिया है तो नोट गेट में सिंपल हम 1 इनपुट अप्लाई करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज ए 1. So fan in is the numbers of input connected to gate without any degradation in the voltage level. Now operating temperature. So all the gates or semiconductor devices are temperature sensitive in nature. The temperature in which a performance of IC is effective is called the operating temperature. And this operating temperature range is normally 0 Celsius to 7 degree Celsius. ओके मीन्स आपका जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, इट इज सेंसिटिव इन नेचर. सो आप जो आईसी उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, सो 6 डेफिनेशन है. नाउ कंपेरिजन ऑफ लॉजिक फैमिलीज. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कंपेरिजन इन योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट चैप्टर. मैंने पीपीटी आई थिंक उसमें भी सेम ही दिया हुआ है, ये जो कंपैरिजन है वो आप एक बार रीड कर लेना. नॉर्मली जो TTL है, वी आर यूजिंग TTL इन अवर लेबोरेटरी बिकॉज इट रिक्वायर्स द लोअर पावर एंड इजीली अवेलेबल. ओके, TTL के एडवांटेज आपको दी. इट इज अ मोस्ट पॉपुलर IC, वाइडली यूजफुल इन डिजिटल लॉजिक फैमिलीज, consist of transistor and it use the transistor in saturation mode. Okay, what why when your transistor go in saturation region, आपका ट्रांजिस्टर saturation region में कब जाता है? हेलो मैम. यस, हाँ बोलो. एमीटर जंक्शन ओके, जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और जो कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है. नो नो. मैम यस, दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे. बेस एमिटर और बेस कलेक्टर जंक्शन. yes, base collector and base emitter both are in forward bias. This is called as saturation condition. And if both are in reverse bias, then it is a cutoff region. And if emitter base, it is a forward bias, and collector base, if it is a reverse bias, then it is called as a active region of transistor. Okay, so this TTL use the transistor operating in saturation mode. It is the fastest of all other logic families. Good speed, low cost, and wide range of circuit, and the availability in SSI and MSI. SSI means small scale integration, and MSI it is a medium scale integration. Small scale का meaning क्या है कि your IC consists of like 10 numbers of gate at a small level, and MSI it is a medium scale, means your IC consists of like 1000 numbers of gate. Same LSI भी है, large scale integration, and very large scale integration भी available है VLSI, उसमें like millions of gates से वो present हो गया IC में. Okay, now Schottky TTL, so it is very useful to increase the speed of your TTL, because when your transistor is saturated, excess charge carrier will be stored in base region, and they must be removed before transistor can be turned off. Okay, अगर आपका ट्रांजिस्टर वो saturation में है, so वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज को वो स्टोर करेगा, and because of this स्टोरेज टाइम डिले, आपका जो ट्रांजिस्टर है TTL है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. सो हमें क्या करना है उसमें, इन दिस केस में, कि वी हैव टू यूज द Schottky TTL series which reduce this delay by not allowing transistor into full saturation. वो ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन में तो जाने देगा, फुल्ली सेचुरेशन में नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर फुल्ली सेचुरेशन में वो चला गया तो वो कैरियर को स्टोर करना चार्ज कर देगा, मतलब क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में है, दैट्स वाई उसको चार्ज करना मतलब स्टोर करना चार्ज कर देगा. उसकी वजह से क्या होगा, स्टोरेज टाइम डिले है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो मेन हमें क्या करना, उस डिले को रिड्यूस करना चाहिए. जितना डिले आपका रिड्यूस होगा उतनी स्पीड इंक्रीज होगी. सो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अ Schottky barrier diode between base and collector of each transistor. So this particular Schottky TTL gives the 3 times
more speed compared to standard TTL, but of course at the expense of doubling the power consumption. ओके आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे या फिर मतलब आप सोथ की बैरियर डायोड उसमें एक ऐड कर रहे हैं, सो इट रिक्वायर द पावर कंजप्शन, तो उसका जो पावर कंजप्शन है वो डबल हो जाएगा कंपेयर टू टीटीएल, बट उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस सोथ की बैरियर डायोड. बैरियर डायोड क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस बैरियर डायोड वो सेचुरेशन में नहीं जाएगा, फुल्ली सेचुरेशन में, दैट्स वाई वो एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं करेगा. अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं करेगा तो उतना टाइम डिले है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो इट इज ए सोथ की टीटीएल. नेक्स्ट वन है इट इज ए ट्राइस टीटीएल. एक्चुअली दिस ट्राइस स्टेट टीटीएल प्रोवाइड द टू स्टेट. नॉर्मली टीटीएल के कितने स्टेट होते हैं, हाई एंड लो, ओके, बट हियर दिस टीटीएल गिव्स द थ्री स्टेट, हाई, लो and high impedance. How it like providing this? Simply we can explain from the example table. Like this tri-state buffer is normally operated by one enable input. And what is enable input? This enable input control your input is passed to output or not. Okay, कोई भी बफर मुझे दिया है लाइक, ठीक है, अगर अनेबल सिग्नल मेरा फॉल्स रख रही हूँ मैं यहाँ स्टार्टिंग में, योर अनेबल इनपुट इज फॉल्स, मींस अनेबल एक्टिव नहीं है. इसका मीनिंग क्या है, अनेबल एक्टिव नहीं है तो आपका इनपुट है वो पास ही नहीं होगा. जब तक अनेबल इनपुट नहीं होगा, अनेबल एक्टिव नहीं होगा, तब तक आपका इनपुट है वो कोई भी सर्किट या गेट में एंटर नहीं होता, मीन्स वो ट्राई स्टेट टीटीएल में जाएगा ही नहीं वो इनपुट, ठीक है. सो इन दिस कंडीशन योर आउटपुट गिव्स द हाई इम्पीडेंस which effectively disconnect its output from the circuit. वो हाई इम्पीडेंस में जाएगा, दैट्स वाई वो सर्किट जो आउटपुट है सर्किट का वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा उसको इसीलिए. लेकिन जैसे ही अनेबल है वो एक्टिव हो जाता है, सो वो इज लाइक बफर की तरह वर्क करने लगेगा. मीन्स अगर फॉल्स है तो वो क्या देगा, फॉल्स, एंड ट्रू है तो वो क्या देगा, ट्रू. ओके, लेकिन अनेबल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्राई स्टेट TTL. Okay, and because of this enable input, this TTL gives the tri-state TTL. Otherwise, TTL gives only like 2. 0 है तो 1, 0 है तो 0 मिलेगा, and 1 है तो 1 मिलेगा. If it is a buffer. लेकिन if we are providing enable input, so it gives the third state. It is a high impedance state. Okay, तो आपको tri-state TTL में mostly यही explain करना है आपको कि it provides a 3 state and how it particular tri-state TTL provides this 3 state, वो आपको explain करना है. Next, and it is the last topic of this chapter, it is the interfacing between CMOS and TTL. Okay, like मुझे दो IC दी है, एक CMOS एक TTL, या फिर कोई भी ले लो, DTL है, RTL, कोई भी, मुझे दोनों को इंटरफेस करना है. आपके पास दो IC है, दोनों को मुझे इंटरफेस करना है, लेकिन मैं इंटरफेस कब कर सकती हूँ, जब दोनों की इनपुट आउटपुट करंट की रिक्वायरमेंट वो सेम है. इफ देयर आर डिफरेंट देन वी हैव टू डू समथिंग. जैसे अगर आप TTL है एंड CMOS उसका कर रहे हैं, ठीक है, सो TTL का आउटपुट करंट कैपेबिलिटी IOH एंड IOL यहाँ पे देखो आप मिली एम्पियर में दिया हुआ है. सो माइक्रो एम्पियर की कंपेरिजन में मिली एम्पियर हायर होता है नॉर्मल, ठीक है. सो आउटपुट करंट कैपेबिलिटी ऑफ TTL IC इज हायर, किसकी कंपेरिजन में, इनपुट करंट वैल्यू ऑफ CMOS. सो इनपुट करंट वैल्यू ऑफ CMOS की क्या है, माइक्रो एम्पियर में. सो फर्स्ट मैंने TTL लिया, सेकंड मैंने CMOS लिया. अब TTL का आउटपुट मुझे CMOS की इनपुट के साथ कनेक्ट करना है, बट CMOS का जो इनपुट है, ठीक है, उसको जितना वोल्टेज चाहिए उतना, सॉरी करंट चाहिए उतना TTL के पास होना चाहिए. सो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज TTL की जो आउटपुट करंट कैपेबिलिटी है वो हायर है कंपेयर टू इनपुट करंट कैपेबिलिटी ऑफ CMOS. सो CMOS को जितना चाहिएगा करंट वो TTL से ले लेगा. सो इन दिस वे वी कैन इंटरफेस द CMOS एंड TTL इजीली. लेकिन अगर ऐसा है कि आपको क्या करना है कि वोल्टेज लेवल करंट है वो TTL का हायर है कंपेयर टू CMOS, लेकिन इफ वी आर कंपेयरिंग इन अ वोल्टेज फॉर्म कि आउटपुट वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ TTL actually it is a lower compared to input voltage capability of CMOS. So CMOS को जितना वोल्टेज चाहिए उतना TTL के पास है ही नहीं, तो हम कैसे उसको इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है. सो बट देयर इज अ प्रॉब्लम व्हेन TTL voltage level compare with CMOS because VOH of TTL series is very low as compared to input requirement voltage requirement of CMOS. लेकिन it depend upon family type. Okay,
सीमोस की अगर 4000 बी है तो इट्स ओके, अगर कोई डिफरेंट है तो उसके लिए वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन हमें क्या करना पड़ेगा, टीटीएल का वोल्टेज है वो लोअर है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, एंड सीमोस है उसको ज्यादा चाहिए. So in this particular condition, we have to raise the output voltage of TTL to some expectable voltage level for CMOS. तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपका TTL है, ये CMOS है, दोनों को मैंने इंटरफेस किया हुआ है, ठीक है. अब इसका वोल्टेज, जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है TTL, वो लोअर है कंपेयर टू CMOS. ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एट द TTL we have to connect one pull-up resistor, and this pull-up resistor generate a higher voltage at the TTL output, and which is used for CMOS. Okay, due to presence of pull-up resistor, there will be rise in TTL output to approximately plus 5 volt in high state, and this will provide a sufficient voltage level at the input of CMOS gate. Such pull-up resistor is not needed if the CMOS gate belongs to this particular family, since this family can accept the TTL output directly. So this thing depend upon फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली का सीमोस है तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसकी फैमिली को हम टीटीएल का आउटपुट डायरेक्टली दे सकते हैं. सो इट डिपेंड अपॉन फैमिलीज. ओके, सो इट इज द इंटरफेसिंग बिटवीन सीमोस एंड टीटीएल. ओके, दिस इज योर लास्ट टॉपिक. यहाँ पे आपका जो चैप्टर 1 है, इट इज लाइक अ डिजिटल फंडामेंटल, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. आई जस्ट रिवाइज हमने इसमें क्या क्या कवर किया हुआ है. फर्स्ट क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल. What is the need of digital electronics? What are the application in a digital electronics, digital watch, digital counter? Next one, block diagram of computer. Okay, so this particular arithmetic and logic unit mostly use the all other gates. वो सारे gates को use करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है. लॉजिक गेट्स जो आपको ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट वन क्या है, यूनिवर्सल गेट्स, NAND and NOR. Okay, why this NAND and NOR are universal gate? Because by using this gate we can design any other gates. Next one है Boolean algebra. So Boolean algebra, it gives the laws of Boolean. Laws of Boolean means क्या है कि by using this laws of Boolean we can reduce our expression as well as reduce the requirement of numbers of logic gates. उसके बाद laws है Boolean algebra के. उसके बाद De Morgan theorem in two state, उसका proof है. And minimize your function in minimum numbers of literal. Okay, reducing the expression. Number system. Okay, decimal to binary, binary to decimal. This number system are most important. Okay, do the following करके आपको 5 and 6 conversion दे देंगे कि decimal to binary, binary to octal something. Okay, after number conversion we just take the sign numbers. Sign numbers represented in two form, complement form and sign magnitude form. Complement form two types के है, ones and twos in binary form. And magnitude means first digit of your twos complement form. अगर first digit आपका क्या है, 1 means it is a negative number and first digit 0 है means it is a positive number. Okay, first complement, twos complement, representation of negative number in twos complement form. Okay, nines complement, tens complement. After that, complement, it is a very useful for the subtraction purpose, because as you know the binary subtraction is difficult compared to binary addition. So this complement convert this subtraction into addition form. Okay, tens complement, binary subtraction, multiplication, subtraction using ones complement, twos complement, binary codes 8421, access 3, 2421. ओके, ये सारे गेट्स, उसका सब्ट्रैक्शन, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, एरर डिटेक्टिंग कोड्स, हैमिंग कोड उसमें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ICs. These 6 definition are most important. Comparison of logic family, TTL, Schottky TTL, tri-state TTL, and how we can interface two ICs, CMOS TTL like that. Okay, any doubt in this chapter particular? चैप्टर नंबर 1 में किसी को डाउट है इन एनी टॉपिक? नो मैम. ओके, आई जस्ट शो यूर फर्स्ट असाइनमेंट. आज मैं आपके उसमें अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में. ओके, बट इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट आई हैव जस्ट कवर यूनिट नंबर 2 ऑल्सो अप टू द केमएप. तो आपको जब केमएप हो जाए ना सेकंड चैप्टर में, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी, तब आपको ये कंप्लीट करना है. बट आप चैप्टर 1 का इसमें जो भी क्वेश्चन है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई
I just will upload in your classroom. ओके, क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी मैं, बट आपको फर्स्ट के सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं. इसमें हाफ सेकंड चैप्टर भी कवर किया गया है अप टू केमएफ. ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है. तो जो भी फर्स्ट के क्वेश्चन है वो लिखना स्टार्ट कर देना. देखो जो मैंने आपको बताया था, डिफाइन फैन इन फैन आउट, व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, वो सब आएगा. इसकी प्रॉपर्टी भी पूछी है आपको बुलियन अलजेब्रा की. ओके, उसके बाद डिमॉर्गन थ्योरम्स है. देखो, डू एज कन्वर्टेड. ठीक है, आपको इस तरह से दे देंगे, आपको कन्वर्ट करना है. उसके बाद आपको एक लॉजिक इनपुट भी दिया है. फाइंड द लॉजिक रिक्वायर्ड एट द आर इनपुट. वो आपको अपना थोड़ा माइंड लगा के फाइंड करना है कि आर इनपुट में हम क्या देंगे कि हमको ये मिलेगा. इस तरह से भी पूछ सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन. उसके बाद देखो 6 नंबर का केमएफ है, वो भी नहीं करना है, सेकंड चैप्टर में हो जाएगा 2 और 3 लेक्चर में, तब करना है आपको. ठीक है, उसके बाद आपको यूनिवर्सल गेट का एक दिया है, डिस्कस नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सब्ट्रैक्शन पूछा है यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट. ओके, आपको एक प्रूफ करने को भी बोला है, LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, सेम नेक्स्ट है वो केमएफ है, वो भी नहीं करना है. reduce the expression, reduce the boolean expression. MEV, it is also one method to reduce, but it is covered in second chapter, तो वो भी नहीं करना for MEV के लिए. ओके, ये भी नहीं होगा. ये आपको करना है, reduce the following boolean function and they realize the reduced one using NOR gate only. ओके, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. सेम आपको यहाँ पे दे दिया, देखो वापस कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 187 टू 8 बिट बाइनरी. तो उस तरह से आपको कन्वर्ट करना है. सारे कन्वर्जन्स है. ठीक है, उसके बाद अगेन मिनिमाइज दिया बट यूजिंग केमएफ, तो वो आपको नहीं करना है. जो भी केमएफ वाला आपको दिखाई दे वो नहीं करना है. ठीक है, प्रूव द बुलियन आइडेंटिटी, तो इसको प्रूव करना है. तो आप ये स्टार्ट कर देना, जितने भी फर्स्ट के क्वेश्चन है वो अपने असाइनमेंट बुक में लिखना स्टार्ट कर देना. सेम यहाँ पे कन्वर्जन दिया, ये सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है. ठीक है, ये प्रूव दैट दिया है आपको. सेम कन्वर्जन है, प्रूव दैट है. मैम, यस, सबमिट का कब करना है? नहीं, सबमिट का मैं अभी आपको नहीं बोलूंगी. जब भी मैं सबमिट का आपको बोलूंगी ना, तो आपको 1 वीक का टाइम दूंगी. ठीक है, आपको जब भी एक्चुअली मैं अभी आपको इसलिए सबमिट का टाइम नहीं दे रही हूँ बिकॉज इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है ना, वो भी प्रेजेंट है केमएफ के. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में जब केमएफ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको 1 वीक का टाइम दूंगी, तो उसके बाद आपको ये सबमिट करना है. लेकिन तब तक के लिए फर्स्ट के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देना. देखो, ऐसा पूछेंगे आपको जो मैंने आपको बोला था, वो फैन इन फैन आउट, नॉइस मार्जिन. पॉजिटिव लॉजिक भी दिया है, नेगेटिव लॉजिक. पॉजिटिव लॉजिक का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि अगर मैं +5 वोल्ट उसको 1 कंसिडर करती हूँ एंड 0 या फिर -5 को 0 कंसिडर करती हूँ, तो इट इज अ पॉजिटिव लॉजिक. ठीक है, आप एक्चुअल में 0-1 अप्लाई कर रहे हैं, आपकी किट है ना उसमें मेंशन किया हुआ है. हम सप्लाई कौन सा दे रहे हैं, +5 वोल्ट एंड -4 वोल्ट. इन सम सर्किट, सब में नहीं देंगे, बट ये 0 डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं होगा. आप क्या प्रोवाइड करेंगे उसको, प्लस एंड -5. ठीक है, या फिर +5 एंड 0 भी दे सकते हैं. अगर नेगेटिव लॉजिक है, इसका मीनिंग क्या है कि -5 को मुझे एज ए 1 कंसिडर करना है एंड +5 को एज ए 0 कंसिडर करना है. सो इट इज ए नेगेटिव लॉजिक. ओके, उसके बाद सेम जितने भी यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है, देखो convert the decimal number 250.5 to base 3, base 4, base 7, base 8. बहुत ज्यादा हो गए, मतलब इसे डेसिमल टू बाइनरी जो आप करते हैं ना, सेम है, बट डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 8, सबका इंडिविजुअल करना है एंड कीप द ट्रैक ऑफ रिमाइंडर. एंड सबका 1 मार्क्स ही है. देखो 4 मार्क्स में पूछे, 4 कन्वर्जन है. ठीक है, ओके, ये सारे कन्वर्जन ही है, कन्वर्जन एंड बुलियन है. आपको गेट से पूछेंगे, इंप्लीमेंट नैंड नॉर एक्सओर गेट यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट. सो इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल गेट, आस्क इन 7 मार्क्स. ठीक है, ओके, बाकी का तो आपको वैसे पता चल जाएगा. ठीक है, आपको सिंपली नंबर कन्वर्जन, रिड्यूस द एक्सप्रेशन एंड बाकी की जो डेफिनेशन है, जो फर्स्ट चैप्टर में कवर हो रहा है उतना लिखना स्टार्ट कर दीजिए. 2 और 3 लेक्चर में आपका केमएफ हो जाएगा, तो उसके बाद में 1 वीक का आपको टाइम दूंगी ये कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, और ये आज मैं आपके जो गूगल क्लासरूम में उसमें अपलोड कर दूंगी. एंड
आपकी टेस्ट भी होगी, बट मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कब मैं लूंगी, बट बिफोर 4 and 5 days आपको बता दूंगी। यूनिट नंबर 1 के लिए गूगल फॉर्म में आपकी क्लास टेस्ट होगी, ओके, बट आई जस्ट इन्फॉर्म यू बिफोर 4 और 5 days, ठीक है। एनी डाउट, एनीथिंग इन चैप्टर नंबर 1? यस मैम। ओके, डाउट है कोई? हाँ मैम। हाँ बोलो। मैम जो आपने वो बाइनरी कोड वाला जो टॉपिक कराया था, हाँ हाँ, उसके बाद जो उसके जो Addition, सम subtraction, कराए थे ना, हाँ हाँ वो मैम नहीं आते हैं। अच्छा ओके, बट वो तो इजी पता आपको। नहीं। यस, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है ना, आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बाइनरी सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, तो आपको पता चलेगा कि अगर बोरो प्रेजेंट है तो मुझे ऐड करना है, या मतलब बोरो प्रेजेंट है तो आपको आई थिंक ऐड करना है, बोरो प्रेजेंट नहीं है तो माइनस करना है, ऐसा है, उसमें मेंशन भी किया हुआ है। सो बोरो प्रेजेंट होगी, वो आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट तो आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। आप फर्स्ट एक बार उसको देखिए, आपने ट्राई किया था? हाँ मैम किया था पर नहीं आया। मतलब आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन नहीं आता, ऐसा कुछ है? फर्स्ट तो बाइनरी वो आता है सब्ट्रैक्शन, मैम। ओके, तो फर्स्ट तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, उसके बाद तो उसमें कुछ है ही नहीं। आपको सिंपली जो इंस्ट्रक्शन दिए ना पीपीटी में, आपको उस तरह से उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। एक मिनट, जैसे आपको ये दिया हुआ है तो कोई भी बोरो जनरेट नहीं हो रही, मीन्स इज ओके, सिंपली वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर बोरो जनरेट हो रही, देखो यहाँ पे बोरो प्रेजेंट है, ये तीनों टर्म है ना, वो बोरो को जनरेट कर रही है, दैट्स वाई मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी क्या? 6 नंबर, बिकॉज बीसीडी में क्या है, 6 इलीगल कोड्स है, और 6 का बाइनरी क्या होता है? 0110, तो उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और इसमें क्या होता है? सब्ट्रैक्ट ओनली, इसमें ऐड नहीं करना है कुछ भी बीसीडी एडिशन में। यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन है कि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोरो प्रेजेंट है, मैम हाँ योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा ओके, हाँ मैंने शेयर ही नहीं किया, एक मिनट। ओके, तो जहां भी मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट किया है ना, सो 6 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कब सब्ट्रैक्ट करना है? जब बोरो प्रेजेंट है। तो आप ये अगर 3 जो भी टर्म्स थे उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसमें बोरो जनरेट हो रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर टर्म्स है उसमें बोरो प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। क्या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है? 0110, और डेसिमल क्या होता है उसका? 6, बिकॉज 6 इलीगल नंबर्स, तो मुझे 6 ही उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी तो उसके बाद तो आंसर मिल जाएगा। और अगर लीगल कोड जनरेट हो रहा है, मींस इट इज अ करेक्ट डिफरेंस। सेम फॉर आपको जो नेक्स्ट दिया है एक्सेस 3, उसमें ऐसा ही है। अगर मैंने एडिशन किया है, देखिए, अगर मेरी कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर देना है आपको यहाँ पे। सो कैरी कौन सा स्टेप जनरेट कर रहा है? तो कि ये वाला, फर्स्ट वाला। तो उस स्टेप में मुझे क्या करना? ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, 011। वाई 011? बिकॉज उसका डेसिमल क्या होगा? 3, इट इज एक्सेस 3 कोड, दैट्स वाई। सो वो ऐड करना है। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, वो सिंपल है। उसके बाद सब एडिशन, आप देखो यहाँ पे तो सेम, जैसे आप एडिशन करते जाएंगे, ये 3 टर्म्स है ना, वो कैरी जनरेट कर रही है, 1, 2 and 3। तो मुझे क्या करना है? इन तीनों में ऐड करना है 3, एंड जो भी टर्म कैरी जनरेट नहीं कर रही, मतलब ये 1100, तो उसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो ऑल डिपेंड अपॉन द लाइक कैरी जनरेट हो रही या फिर नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जब इसका बाइनरी लिखे ना, तो +3 ऐड करके लिखना है, क्योंकि एक्सेस 3 नंबर है। आपको अगर 2 4 7 दिया है, सो यू टू एज्यूम 2 + 3 मींस 5, तो यहाँ पे 5 का बाइनरी लिखना है, 4 + 3 7 का बाइनरी लिखना है, 7 + 3 10 का, एंड 6 + 3 9 का बाइनरी लिखना है, ठीक है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन में, अगर बोरो जनरेट हो रही है तो ये दोनों टर्म्स है ना, उसमें बोरो प्रेजेंट नहीं होगी या फिर जनरेट नहीं की होगी इस टर्म ने, इसलिए उसमें मैंने क्या किया हुआ है?
सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, और जिसमें बोरो नॉट जनरेटेड उसमें ऐड करना है। अगर बोरो जनरेट कर रही है पर्टिकुलर टर्म तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0011, एंड बोरो नहीं जनरेट हो रही है तो उस टर्म में क्या करना है, ऐड करना है। तो अल्टीमेटली आपको एडिशन ही करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद चेक करना है कैरी जनरेट हो रही है, नहीं हो रही, बोरो जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है, उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पे मेंशन करके दिया है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। इट इज ए सब्ट्रैक्शन। ओके, सेम फॉर नेक्स्ट में भी ऐसा ही है। ठीक है, ये जो टर्म्स है, ये पर्टिकुलर टर्म ये, ठीक है, वो बोरो जनरेट नहीं कर रही होगी इसलिए इसमें ऐड किया है, और बाकी की जो टर्म है उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो बोरो जनरेट करेगी, दैट्स व्हाई हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लेना, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप बताना। ठीक है, ओके मैम। ओके, नाउ प्लीज राइट योर नंबर फॉर द अटेंडेंस in chat.